السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک دنیا کی بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کو امید ہے آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے والدین کو عزت دینے کے 35 طریقے، پیرنٹس کو عزت دینے کے 35 میتھڈز۔ نمبر 1، والدین کی موجودگی میں اپنا فون دور رکھیں، یعنی کہ جب ہمارے والدین ہمارے سامنے ہوں تو ان کے سامنے زیادہ تر فون نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کی کوئی ضروری بات ہے، کسی سے بات کرنا پڑ رہا ہے، تب تو تھوڑا بازو میں جا کر کے فون بات کر سکتے ہیں، لیکن سامنے بیٹھ کر ان سے بات کرنے کے وقت میں ان کے سامنے رہتے ہوئے جب وہ آپ سے آپ کی توجہ چاہتے ہیں تو اس وقت خاص کر کے آپ اپنا فون اپنے سے دور رکھیں۔ نمبر 2، ان کی بات توجہ سے سنیں۔ نمبر 3، ان کی رائے کو مقدم رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات میں مشورہ دے رہے ہیں آپ کو کہ فلانا کام کریں یا فلانا کام نہ کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی بات کو پہلے نمبر پر رکھیں۔ نمبر 4، ان کی گفتگو میں شامل رہیں۔ جب والدین کوئی گفتگو کر رہے ہوں، کوئی بات چیت کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ میں شامل رہیں۔ وہ بات کر رہے ہیں، آپ ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، ان کی بات میں توجہ نہیں دے رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ نمبر 5، ان کو عزت سے دیکھیں۔ والدین کو ہمیشہ عزت سے دیکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ حقارت کی نظر سے دیکھیں یا ان کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ان کو برا لگے، یہ غلط ہے۔ نمبر 6، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات نہ کریں۔ بد اخلاقی کا مطلب یہ ہے کہ برے لہجے میں یا بدتمیزی کے ساتھ میں یا کچھ برے الفاظ کے ساتھ میں یا حقارت والے الفاظ ان کے ساتھ بات نہ کریں۔ نمبر 7، ان کے ساتھ اچھی خبر شیئر کریں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اچھی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ نمبر 8، ان کو بری خبر بتانے سے پرہیز کریں۔ ایسا نہیں کہ بری خبر نہیں بتانا چاہیے، لیکن ایسی بری خبریں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو ویسی باتوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 9، ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کریں اور ان سے محبت رکھیں۔ کچھ والدہ کی سہیلیاں ہوتی ہیں، کچھ والد کے دوست ہوتے ہیں، وہ کبھی ان کو ملتے ہیں یا ان سے بات چیت کرنے کے لیے کہیں پر ٹہرتے ہیں تو ساتھ میں جو ان کے لڑکے لڑکیاں رہتی ہیں وہ ان سے محبت کا برتاؤ کریں، ان کو دیکھ کر سلام کلام کریں، ان سے اچھی طرح سے باتیں کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ والد کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کہیں پر ٹہر گئے، کہیں پر بات کرنے میں لگ گئے تو ان کو گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہاں پر ہم کو ٹہرنا پڑا یا ہم کو دیر ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے کبھی بھی مت سوچیں۔ نمبر 9 کیا ہے؟ ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کریں اور ان سے محبت رکھیں۔ نمبر 10، ان کی کہی ہوئی اچھی باتیں یاد رکھیں۔ والدین جو بھی اچھی باتیں کرتے ہیں اس کو اپنے دماغ کے اندر، دل کے اندر بٹھا لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کے تجربے کی باتیں آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائیں گی تو آپ کو وہ چیزیں بعد میں کام آئیں گی۔ نمبر 10 کیا ہے؟ ان کی کہی ہوئی اچھی باتیں اکثر یاد رکھیں۔ نمبر 11، ان کی عمر کا احترام کریں۔ والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا زیادہ عمر ہو جائے تو ان کا احترام کریں۔ قرآن کے اندر بھی ایک آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ یہ ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ تو یہی چیز یہاں پر کہی گئی ہے کہ ان کی عمر کا احترام کریں۔ نمبر 12، ماضی کی تلخ یادوں کو ان کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اگر پرانے وقتوں میں کوئی کڑوی باتیں، کوئی بری باتیں ہو گئی ہوں تو وہ چیزیں ان کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ ان کو یاد کر کے والدین کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ نمبر 13، ان کی موجودگی میں کسی دوسری گفتگو سے پرہیز کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے ہوں تو آپ دکان کی باتیں، باہر کی باتیں، کسی دوست کی باتیں، ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ غیر ضروری باتیں جو باہر کی ہیں، جس سے والدین کے ساتھ میں کوئی مطلب نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ان کے سامنے نہ کریں۔ نمبر 14، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے اوپر جا کر کے کسی کرسی پر بیٹھ جائیں، کسی صوفے وغیرہ پر بیٹھ جائیں، یہ ان کے ادب کے خلاف ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اگر آپ حیوان بننا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ
इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका शुमार इंसानों में होना चाहिए तो आप वालिदैन के सामने अदब से बैठे। नंबर 15, उनकी राय और सोच के मुतालिक मामूली सा भी इख्तिलाफ ना करें। इसका मतलब यह है कि अगर वो किसी बारे में आपको राय या उनकी सोच आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो उनकी सोच को, उनकी राय को उसके अंदर मामूली सा भी नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं वैसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, इस तरीके की बातें आप वालिदैन के साथ ना करें। नंबर 16, जब वो गुफ्तगू करें तो उनकी बात को ना काटें। मतलब यह है कि अगर वो आपसे कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो आप उनकी बात पूरी सुने बगैर अपनी बात कहना शुरू कर दें। ये बहुत ही ज्यादा गलत है। इस तरह की आदत बहुत से लोगों में होती है। वो लोग ये सोचते हैं कि उनसे ज्यादा मेरी समझ है, उनसे ज्यादा मेरी अक्ल है, वो ये समझ करके हर बात के अंदर अपनी बात शामिल कर देते हैं। वो सामने वाले की बात ना सुनते हैं और ना दूसरे सुनने वालों को सुनने देते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। ये तो वालिदैन के साथ ही नहीं बल्कि किसी और के साथ भी इस तरह से गुफ्तगू को दरमियान में नहीं काटना चाहिए। नंबर 17, उनकी दोहराई हुई बातों को इस तरह सुने कि गोया पहली बार सुन रहे हों। ये भी बहुत जरूरी बात है। बहुत से वालिदैन बूढ़ी उम्र को पहुंच जाते हैं तो वो एक ही बात को बार बार कहते रहते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। उनका कहने का मकसद ये होता है कि वो आपको बार बार सुनाएं, बार बार उस बात की तरफ तवज्जो दिलाएं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं। ये उनका आप पर एहसान है कि वो आपको बार बार बातों को दोहरा कर कहते हैं ताकि आपको याद रहे। बाज लोग ये करते हैं कि वालिदैन 2 मरतबा 3 मरतबा जब कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को काट देते हैं, कहते हैं कि अभी तो आपने कहा था, अभी तो हमने आपसे ये सुना था। इस तरह कह करके वालिदैन की बात को दरमियान में काट देते हैं। ये गलत है। उनकी दोहराई हुई बातों को इस तरह सुने कि गोया पहली बार आप उनसे ये बात सुन रहे हैं। नंबर 18, उनकी मौजूदगी में अपने बच्चों को डांटने और मारने से परहेज करें। इस तरह का काम भी बहुत सारे लोग करते हैं कि जब वालिदैन सामने होते हैं तो उस वक्त में अपने बच्चों को डांटते हैं और मारते हैं, बल्कि उनके सामने अपने बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहिए। इससे 2 चीजें हमें समझ में आती हैं। एक ये है कि अपने बच्चों को मारने या डांटने से वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, इससे वालिदैन को तकलीफ होती है। दूसरा यह है कि वालिदैन के सामने बच्चों को मारने से बच्चों पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। बच्चों के दिलों में वालिदैन के लिए बुराई पैदा हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि दादी दादा के सामने, नानी नाना के सामने मुझे मारा गया, मुझे जलील किया गया। वो ये सोचते हैं कि मेरी इज्जत खराब हुई है। छोटे बच्चे हों तो वो कुछ नहीं समझेंगे। छोटे बच्चे नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को मारने से वो वालिदैन के सामने रोते हैं। इस वजह से वालिदैन को तकलीफ होती है। बड़े बच्चों को अगर आप मारेंगे तो उनको बेइज्जती महसूस होगी। तो इसलिए 18 नंबर में आपसे ये कहा जा रहा है कि उनकी मौजूदगी में अपने बच्चों को डांटने और मारने से परहेज करें। अगर आपको उनको कुछ कहना ही है, कुछ डांटना वगैरह ही है, तो जब वो आपके सामने ना हो अपने वालिदैन, तो उस वक्त में आप उनको डांटें, मारें, कुछ भी करें। नंबर 19, उनके हुक्म और मशवरे को कबूल करें। नंबर 20, उनकी मौजूदगी में सिर्फ उनसे ही रहनुमाई ले। इसका मतलब यह है कि आपके वालिदैन मौजूद हैं, आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको किसी चीज के बारे में रहनुमाई चाहिए, तो आप वालिदैन को छोड़कर किसी और से बात कर रहे हैं कि इसके बारे में आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। ये गलत है। अगर आपके वालिदैन आपके सामने मौजूद हैं तो आप पहले अपने वालिदैन से उसकी रहनुमाई लें। नंबर 21, उनके सामने अपनी आवाज को हरगिज ऊंचा ना करें। नंबर 22, उनके सामने खुद को बड़ा जाहिर मत करें क्योंकि वो आपके वालिदैन हैं। नंबर 23, उनको हमेशा ताज़ीम दें। ताज़ीम का मतलब यह है कि उनको हमेशा इज्जत दें, इज्जत से देखें, इज्जत से बात करें। सब चीजें ताज़ीम के अंदर आ जाती हैं। नंबर 24, उनके सामने अपने आप को थका हुआ जाहिर ना करें। नंबर 25, उनके सामने बैठते हुए अपने पाँव उनकी तरफ न बढ़ाएं, इससे बेअदबी होती है। नंबर 26, उनकी तरफ पीठ करके ना बैठें। चेहरे को दाईं तरफ करे हुए है, कोई बाएं तरफ करे हुए है। खास करके अपने बड़ों के सामने इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको कोई जरूरी काम हो तो आप उनसे कह करके इस तरीके से बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो आपके सामने बैठे हुए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आप मुंह पलटा के दूसरी तरफ बैठ गए, अपने दूसरे काम में लग गए। ये गलत है। नंबर 27, जब वो खुद किसी काम का अपने आप को काबिल ना समझें तो कहें आप काबिल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वालिदैन कोई काम करना चाहते हैं लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो उस वक्त आप उनको ये कहें कि मैं आपका ये काम करके दे सकता हूँ। नंबर 28, हमेशा ये कोशिश करें कि उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें। नंबर 29, उनकी गलती और भूल पर कभी भी मत मुस्कुराइए क्योंकि हर कोई इंसान है,
इंसान से तो गलतियां होती ही हैं, क्योंकि वो आपके वालिदैन हैं। इसलिए उनकी गलती करने पर अगर आप मुस्कुराएंगे तो उनके दिल को दुख होगा कि मैंने ऐसी गलती की कि मेरे बच्चे भी हंस रहे हैं। इसलिए इस तरह की गलती ना करें। नंबर 30, उनकी जियारत बराबर करते रहें। इसका मतलब यह है कि आप अलहदा मकान में रहते हैं और आपके वालिदैन अलहदा मकान में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग हो गए, वो अलग हो गए। आप रोजाना जरूर उनकी जियारत करते रहें, जरूर उनके पास जाते रहें, हाल चाल दरियाफ्त करते रहें, उनकी जरूरियात का पूरा ख्याल करते रहें, रोजाना उनकी दवाइयों का ख्याल करते रहें, उनके खाने पीने का ख्याल करते रहें, उनकी जियारत बराबर करते रहें। और इसका मतलब ये भी है कि उनको आपकी कभी महसूस हरगिज नहीं होने दें। नंबर 31, और उनको मोहब्बत भरे नामों से पुकारें। इसका मतलब यह है कि बाज बच्चे अपने वालिदैन को गे के नाम से कहते हैं, गे माँ। जिस तरीके से कोई आदमी अपनी माँ को माँ कहकर पुकारता है तो वो अपने साथ तो उस लफ्ज माँ के साथ में वो गे लगा देता है, गे माँ। तो ये बहुत गलत है। आप इसका बदल ये कर सकते हैं कि गे की जगह में जी कहें, या ये कहें कि अम्मा जी, अम्मी जी। इस तरीके के अल्फाज इज्जत के साथ इस्तेमाल करें और उनके बात करते वक्त बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करें। आप जो अपने दोस्तों के साथ में बात करते हैं उस तरह की लैंग्वेज अपने वालिदैन के साथ हरगिज बात ना करें। आप वालिदैन के साथ में बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करें। कोई भी गाली गलोच वाली बात, कोई भी ऐसे अल्फाज जिससे बद अखलाकी जाहिर होती हो, इस तरीके के अल्फाज हरगिज ना करें। अपने अल्फाज का चुनाव बेहतरीन करें। नंबर 33, और उनको हर चीज पर मुकद्दम करें और तरजीह दें। इसका मतलब यह है कि आप घर के अंदर कोई खाने की चीज लाए हैं, कोई भी चीज लाए हैं, वो देना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसको दें? वालिदैन को दें। आप खाने पर बैठे हैं और खाना आप सर्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसको डालें? वालिदैन को खाना डालें। बहरहाल हर चीज के अंदर वालिदैन को पहले रखें। नंबर 34, उनसे पहले खाना मत शुरू करें। पहले वालिदैन खाना शुरू करेंगे तो फिर उनको देख करके हम भी शुरू करेंगे। नंबर 35, उनके साथ चलते हुए उनके आगे चलने या बढ़ने से परहेज करें। आप और आपके वालिद या वालिदा आपके साथ चल रहे हैं तो आप उनके सामने सामने ना जाएं। आप उनके रहबर नहीं हैं, वो आपके रहबर है, इसलिए आप उनके पीछे पीछे चलें। तो आखिर में मैं आपको एक छोटी सी नसीहत के साथ में इस वीडियो को खत्म करता हूँ। वालिदैन इस कुर्रे अर्ज पर खजाना है, इस जमीन के ऊपर खजाना है। इससे पहले कि यह खजाना दफन हो जाए, अपने वालिदैन की कदर कर लें। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। यकीन है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस चीज को शेयर करेंगे। मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।